Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. इन दोनों newspaper से जो भी news आपके examination point of view से important है, we'll try to understand in very simple manner, right? So let's get started. And before I begin, these are the list of the topic for 15th of September. So the first topic is Agriculture Reforms Bill, which was recently tabled. Yesterday it was tabled in the Lok Sabha. Now the second topic is Sri Lanka revisiting the draft 20th amendment because the present government is trying to cancel the 19th amendment which was proposed by the previous presidents. Now the third topic is addressing the urban employment. This is a good important editorial that has been reported. Now the fourth topic is draft non-personal data governance framework. So कुछ important point यहाँ से भी मैं आपको बताऊंगा. And the last topic is water leaks from Konda-Puchma River, right? So this is a reservoir from where the water leaks cases has been reported. And talking about the Konda-Puchma is something is important because this has been recently in news, twice or thrice this was being reported. तो ये वहाँ पे आपके लिए important हो जाती है. Now apart from all this news, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday question. So let's get started with the topic. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. So the first topic, that is Agriculture Reform Bill, which was tabled in the Lok Sabha. So बात करें इस तरह की बिल की, तो bill is always important for your prelims examination. Prelims में this is equally very important. बात करें अगर जनरल स्टडीज़ में, तो जनरल स्टडीज़ में पेपर 2 जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ में ये इंपॉर्टेंट है. साथ के साथ एग्रीकल्चर जो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में मेंशन है, वहाँ पे ये सीधी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यू नीड टू सिंक्रोनाइज द थिंग्स बिकॉज थिंग्स लाइक एग्रीकल्चर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन एसे एज वेल. अगर आप एसे भी लिखेंगे तो वहाँ पे भी दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम दिस न्यूज़. तो रिसेंट में मॉनसून सेशन जो कल से स्टार्ट हुई है, वहाँ पे पार्लियामेंट में सेंटर ने 3 इंपॉर्टेंट फूड और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के जो बिल हैं उसको टेबल किया है लोकसभा में. एंड दिस प्रपोज्ड लेजिस्लेशन विल रिप्लेस द ऑर्डिनेंस, जो कि कोविड-19 से पहले जो बहुत सारे ऑर्डिनेंस के जो रास्ते लिए गए थे, द ऑर्डिनेंस विच वॉज बीइंग परमलगेटेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन विल बी कमिंग टू द चेंज बिकॉज वंस द ऑर्डिनेंस इज परमलगेटेड दैट हैज़ टू बी पास्ड बोथ बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा. तो इसको पास करके जो भी मार्केटिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं या जो एग्री कमोडिटीज़ जो कि रजिस्टर्ड मार्केट में भी रजिस्टर्ड होते हैं, उन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाने के लिए दे आर द स्पेसिफिक बिल विच वुड बी पास्ड. मैं आपको तीनों बिल के बारे में आगे बताऊंगा. सो बेसिकली पार्लियामेंट हैज़ टेबल्ड 3 इंपॉर्टेंट बिल रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर रिफॉर्म. सो कौन कौन से वो बिल हैं 3 इंपॉर्टेंट बिल? सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, बिकॉज दिस वॉज बींग अमेंडेड इन द कोविड-19. यहाँ पे अमेंडमेंट लाई गई थी कि कुछ 10 लिस्ट ऑफ फूड्स ऐसे आइटम्स थे जिनको डीरेगुलेट करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी चेंजेस किए गए थे. So to remove the existence restriction on the stocking foods, this was being enacted और अब ये पास होगी Essential Commodities Act. Now the second bill which was being tabled was the Farms Produce Trade and Commerce, जिसको Promotion and Facilitation Ordinance 2020 के नाम से भी जानते हैं, इसको FPTC भी कहते हैं शॉर्ट में. तो ये जो बिल आई थी, ये जो ऑर्डिनेंस आई थी, इसका जो पूरा मेन एम था वॉज टू एंड द मोनोपोली इन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी. जो APMC है, वहाँ पे जो मोनोपोली चल रही है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके. एंड इट विल allow anyone to purchase and sell the agriculture produce, so without any middleman. because होता क्या है, this is the farmer, this is the APMC and this is the buyer, right? so इस बीच में भी काफ़ी middleman है, they are taking the interest और profit of the farmer ultimately. तो यहाँ पे कोशिश की गई है जो buyer है और farmer जो है उनके बीच में एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन या डायरेक्ट एक संवाद स्टैब्लिश की जाए, राइट? Now the third bill that was being tabled was the Farmer Empowerment and Protection Agreement Price Assurance Farm Services Ordinance. I'm just reading out the entire ordinance name या bill name so that you get the clarity कि actual में है क्या, right? तो ये नाम आपको जानना काफ़ी ज़रूरी. कई बार prelims examination में जो questions होंगे वो सीधा बिल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा होगा, right? So you need to understand it. तो इस वाले बिल में जहाँ पे empowerment and protection की बात की गई है, सो इट हैज़ बीन इनैक्टेड टू लेजिस्लेट द कॉन्टैक्ट फार्मिंग, जो डायरेक्ट फार्मर जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि फार्मर
और जो बायर है उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, राइट। देयर वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड बी एस्टैब्लिश, ताकि जो बड़ी बिजनेस हैं या जो कंपनीज हैं वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फार्मर्स के साथ अपने बात को कर सके, और जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो इंडिविजुअली बायर्स और फार्मर के बीच डायरेक्टली एस्टैब्लिश हो सके। Now, according to the एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो रिसेंट लॉ इनैक्ट की गई है, दिस वुड बेनिफिट फार्मर, ऐसा कहना है एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। कल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए भी ये सारी चीज़ें बताई, एंड ही सेड कि इट वुड एम्पावर देम टू डिसाइड द प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस। अब फार्मर ही डिसाइड करेंगे कि उनके जो प्रोड्यूस है वो कितने में बिकनी चाहिए। बट यहाँ पे एक चैलेंज है और एक कंसर्न भी है, जब आप मार्केट को कम्प्लीटली डीरेगुलेट कर देते हो तो फार्मर आर मोस्टली प्रोन, दे आर मोस्टली वनरेबल। होता क्या है, कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्राइस की सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे वो चीट होने की जो ऑप्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाती है फ्रॉम द बायर साइड, राइट। तो ये भी एक चैलेंज होगा जिसको देखना होगा। अगर आप आंसर लिखें तो ये भी डायनामिसिटी को अपने आंसर्स में ज़रूर कवर करें, राइट। तो फार्मर यहाँ पे बताया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि फार्मर्स जो हैं वो डायरेक्टली अपने सेल प्रोड्यूस को अपने प्राइस के हिसाब से बेच पाएंगे, एंड अर्लियर इट वाज डिटरमिन्ड बाय द ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स की जगह गवर्नमेंट यहाँ पे खुद इंटरवीन कर सकती थी। नाउ इट वुड ऑल्सो इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जिस तरह से कई जगह पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्टली ट्रिपल P मॉडल्स पे या फार्मर के साथ कम्युनिकेट करके टेक्नोलॉजी की मदद से नए सेक्टर्स भी इस्टेब्लिश किए जा सकेंगे, right? So these are the three important bill that has been tabled yesterday in the parliament in the Lok Sabha. Now कुछ लोग ऐसे हैं, फार्मर्स कम्युनिटी ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल का बेसिकली अपोज किया है इनको, दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ द बिल। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो फार्मर ग्रुप है, दे आर अपोजिंग द मूव टू अमेंड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उनका कहना है कि जो न्यू लॉ है दे बाईपास द स्टेट MPMC एक्ट एंड फैसिलिटेट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ये बढ़ावा देता है। नाउ जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो पंजाब के फार्मर्स थे, दे आर रीचिंग फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा, देन टू यूपी, बैक टू दिल्ली। सो स्टेट बॉर्डर्स को उनको स्टेट बॉर्डर्स पे ही रोक दिया गया, सो दैट द थिंग्स डू नॉट गेट वर्स बिकॉज ऑफ द कोविड-19। द सोशल डिस्टेंस हैज़ टू बी मेंटेन। और ये जो एरियाज हैं लाइक दिल्ली, दे आर द मोस्टली हॉटस्पॉट एरिया जहाँ पे रोज़ाना 1 लाख से ऑलमोस्ट लाइक 40,000 एंड ऑल द केसेज आर बिंग रिपोर्टेड। सिर्फ दिल्ली से अगर बात करूँ तो 4,000 केस सिर्फ दिल्ली से रिपोर्ट हो रहे हैं, right? And farmers were again shouting slogans regarding demand of the immediate withdrawal of the 3 ordinance. तो फार्मर कम्युनिटी ने ये तीनों ऑर्डिनेंस का काफ़ी ज़्यादा पुरजोर विरोध किया है। दे डोंट वांट दैट दिस ऑर्डिनेंस टू बी पास्ड एंड अगेन टेकिंग द शेप ऑफ द लॉ, राइट। वंस द ऑर्डिनेंस इज पास्ड एंड इट इज गिवन द एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, द ऑर्डिनेंस बिकम द लॉ। Now farmer were seen to be shouting the slogan demanding the immediate withdrawal of all these 3 ordinance, right? So this is the same, this is more of the repetition of the line, so do ignore this. Now coming to the way forward, like what would be the way forward? तो यहाँ पे ज़रूरी है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इज़ एक्सपेक्टेड टू बिल्ड अ नेसेसरी एग्रीरियन इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बॉटलनेक्स है, जिसके लिए सरकार ने ऑलरेडी फंड भी एलोकेट किए कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, वो एक बहुत ही अहम कदम होगा। एंड इट विल सॉल्व द नंबर ऑफ इशूज़ लाइक द प्रॉब्लम विच इज़ बिंग फेस्ड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। उसके अलावा इट इज़ कंसिडर्ड एज अ विजनरी सेटअप, जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर सेटअप बनाई जाएगी। फार्मर्स के जो इनकम है उसको डबल किया जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट व्हाट प्रीवियसली सेड कि जो फार्मर्स के जो इनकम है उनको 2022 तक डबल करना है। बट अभी के जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं या जो कोविड-19 है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उससे कुछ ये होता अभी दिख नहीं रहा है। सो आई पर्सनली फील it would take 2024 or 2025 to make farmer income double. Still, in this present 2 years, it is not possible, right? So practically talking, मुझे लगता है कि 2024-2025 तक ही चीज़ें possible हो पाएगी. Now coming to the second topic, that is Sri Lanka revisiting draft 20th amendment. यहाँ पे कुछ important बात है श्रीलंका के जो कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के दे आर प्लानिंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। साथ के साथ जनरल स्टडीज़ में पेपर 2 जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन की बात की गई है फ्रॉम द नेबरहुड, टॉपिक नंबर 17 है आपके सिलेबस में, वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ द श्रीलंका गवर्नमेंट इज रिविजिटिंग द ड्राफ्ट 20th अमेंडमेंट, जहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले दे दी गई थी। पब्लिक कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों पे अभी एक कमिटी बनाई गई है। दे वुड बी लुकिंग इनटू द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स दैट वुड इम्पैक्ट द सिटीजन ऑफ द श्रीलंका।
तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अपॉइंट किया है 9 मेंबर कमेटी को दैट वुड स्टडी द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। तो प्रपोज्ड अमेंडमेंट का मतलब है जो 90th अमेंडमेंट थी वहाँ से शिफ्ट करके जो 20th अमेंडमेंट की तरफ आगे बढ़ने की बात की है, इसको ध्यान में रखते हुए जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जो वहाँ की पीएमओ है, दे हैव एस्टेब्लिश्ड अ 9 मेंबर कमेटी, राइट। एक 9 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है। Now, what is the draft 20th amendment? We have discussed this news previous as well. मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी डिफरेंशिएट करके बताया भी था क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अब वो वीडियो भी देख सकते हैं। Now, the newly drafted 20th amendment that envisages the enhancing presidential power, जो presidential power है उसको बढ़ाने की बात की गई है, along with the immunity with significantly reducing the prime minister role and power। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे श्रीलंका के, उनके पावर्स को, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात की गई है, और जो पीएम है उसके रोल और पावर को कम किया जाएगा विद द 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो वहाँ पे लाई जा रही है। नाउ इलेक्शन की प्लेज की अगर बात करूँ तो अभी जो रिसेंटली अगस्त में इलेक्शन हुए थे उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लेज किया था कि व्हेन वी कम टू द पावर वी वुड बी इम्प्लीमेंटिंग, वी वुड बी रिपीलिंग द 90th अमेंडमेंट। ये सरकार ने एक मैनिफेस्टो में, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में इसको बाकायदे जारी किया था। तो पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम में ये प्रॉमिस की गई थी कि अगर जो महिंद्रा राजापक्षे हैं वो अगर पावर में आते हैं, उनके भाई गोतबाया राजापक्षे, बोथ ऑफ द ब्रदर्स आर देयर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, इफ दे कम इनटू द पावर दे वुड बी कैंसलिंग द दे वुड बी रिपीलिंग द 90th अमेंडमेंट। और जो 90th अमेंडमेंट है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मर गवर्नमेंट इन 2015। श्री सिन्हा की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे इस चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो 90th अमेंडमेंट की पूरी एम है, मैं आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूँ, इज़ टू इम्पोज द कर्ब ऑन द प्रेसिडेंशियल पावर। प्रेसिडेंशियल पावर को कम करने की बात की गई थी, एंड इट वुड एम्पावरिंग द पार्लियामेंट एज एन इंडिपेंडेंट कमीशन। तो 90th अमेंडमेंट में जो प्रेसिडेंट की पावर है उसको कम करने की बात की गई है, बट द सेम इज अपोजिट इन द 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पावर को इंक्रीज किया जाएगा। तो ये इलेक्शन के प्लेज को ये आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। देखना होगा गवर्नमेंट वहाँ की किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करती है, बिकॉज ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी लाइक श्रीलंका। नाउ क्रिटिसिज्म भी किए गए हैं इस चीज़ को। तो जो अपोजिशन पार्टी है श्रीलंका की, दे आर मूलिंग की जो कोर्ट ने प्रपोज किया था अमेंडमेंट को, जहाँ पे द बार एसोसिएशन ऑफ श्रीलंका हैज़ अपॉइंटेड अ स्पेशल कमिटी कि जो 20th अमेंडमेंट है उसको स्टडी किया जाए, उसके बाद इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो भी चेंजेस करने हैं। और जो अमेंडमेंट फाउंड की गई थी इस चीज़ को लेकर के यूएन हाई कमीशन में भी बात उठी है कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट फेवरेबल, जो ह्यूमन राइट के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। ह्यूमन राइट काउंसिल जिनीवा में इसके लिए ऑलरेडी बात भी हुई है। तो लेट्स सी, बिकॉज इफ श्रीलंका passes this, they have to face the international forum and the management which are handling the entire arena of their human right councils, right? तो UN high commissions भी हैं और सारे जगह पे जवाबदेही तय करनी होगी। The responsibility has to be come from the government of the Sri Lanka, right? ना वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो फॉर श्रीलंका, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है नई गवर्नमेंट के लिए वो स्ट्रेंथन करेगी श्रीलंका के डेमोक्रेसी को, ऐसा कहना है वहाँ की गवर्नमेंट का। नाउ इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म इन द कंट्री टू अचीव द प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल का मतलब है जो वहाँ के सिटीजन है, जो वहाँ के आम नागरिक है, they should be the ultimate beneficiaries of this amendment, right? And for India it should like push for the reconciliation efforts। जो यहाँ पे जो तमिल्स हैं श्रीलंका के, उनके लिए एक सेंसिटिव इश्यूज होगा कि जो उनके जो सिक्योरिटीज़ हैं, श्रीलंका सिक्योरिटी वुड बी अगेन अ ग्रेट इशूज, बिकॉज तमिलियन इशू हैज़ बिन लॉन्ग पेंडिंग। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो तमिल इशूज़ हैं वो आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रही है, राइट? तो कहीं ना कहीं इसके तरफ भी एक प्रॉपर कंक्लूजन, एक रोड मैप डिसाइड करेगी from India and from the Sri Lanka, right? So this would be the way forward. These are the two important points which you can write in the examination. Now coming to the other topic, that is draft non-personal data governance framework. This is there in the Indian Express, आपको national page में मिल जाएगी, और ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ कमिटी बनाई गई है जो इन्फोसिस के जो को फाउंडर है कृष गोपालन कृष्णन, उनके अध्यक्षता में
ही वुड बी द मेंबर, ही वुड बी हेडिंग द कमिटी, जो कि बेसिकली जो नॉन पर्सनल डेटा कमिटीज़ है उनको ये हेड कर रहे हैं। इन्होंने पब्लिक कमेंट्स के लिए ड्राफ्ट को ओपन रखा है, ताकि जो भी नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस के रिलेटेड जो फ्रेमवर्क, जो रूल बनेंगे, उसमें पब्लिक कमेंट दिए जा सकते हैं 13 सितंबर तक, राइट। सो इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस न्यूज़ वंस एंड ट्वाइस, सो दिस इज थर्ड टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस, राइट। तो मैं कुछ इस बार के जो न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने ड्राफ्ट को ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो जो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, दे हैव सजेस्टेड कि जो नॉन पर्सनल डेटा है, दे आर जनरेटेड इन द कंट्री एंड वुड बी अलाउड टू बी हार्नेस बाय वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज और एंटिटीज़, जैसे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए नॉन पर्सनल डेटा दिया जाएगा, ऐसा कहना था कमिटी के रिकमेंडेशन में, right? And the committee has also suggested setting up of the new authority which would be empowered to monitor the use of non-personal data. तो एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि सारे नॉन पर्सनल डेटा रिलेटेड मैटर को मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी। नाउ इस अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा आप जान लें, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो अथॉरिटी होगी, दैट वुड बी एस्टैब्लिश बाय पुटिंग द प्लेस ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द नॉन पर्सनल डेटा। और ये जो एक्सपर्ट्स होंगे अपने अपने डिफरेंट फील्ड से रिगार्डिंग द डेटा गवर्नेंस, वो इस पैनल में कंसिस्ट करेंगे। और जो अथॉरिटी होगी, दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द गाइडलाइन, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, कितने डेटा शेयरिंग को लेकर के क्या रिस्क एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें जो नॉन पर्सनल डेटा से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको मॉनिटर नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी करेगी, राइट। नॉन पर्सनल डेटा की अगर कैटेगरीज की बात करें, तो जो श्री कृष्ण गोपालन कृष्णन कमेटी है, उन्होंने इसको क्लासिफाइड किया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज पे। सो द फर्स्ट इज पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, सेकेंड इज कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा एंड द थर्ड इज प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। सो ये 3 तरह के नॉन पर्सनल डेटा की कैटेगरीज हैं, जो कि भी आपके जानने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मेंस में अगर आप लिखते हैं तो यू हैव टू राइट दिस थिंग्स, राइट। नाउ एक्सपर्ट व्यू की अगर बात करें, जो हमारी डेटा गवर्नेंस को लेकर के बातें की गई, जो नॉन पर्सनल डेटा है, उसमें एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ अ प्री मेच्योर टाइम एंड इंडिया इंटायरली डज नॉट नीड दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा कहना है एक्सपर्ट का। एंड एज ऑफ नाउ कंट्री इज येट डू नॉट हैव द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम। अगर बात करें, लॉज भी हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक चीज़ों को इस्टेब्लिश कर दोगे, अगर एक इंस्टीट्यूशन बन जाती है, सो लॉ बैकिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एजुकेशन होगी, जो ग्रीवांसेस होगी, उनको भी हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह से नए स्टार्टअप्स, जो टेक पॉलिसीज़ हैं, इनको इंक्लूड किया गया है, 9 मेंबर कमेटीज़ बनाई गई हैं, तो उसको देखना होगा कि ये चीज़ें आगे किस तरह से आगे बढ़ेगी। बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, व्हेन इफ अ लॉ इज एस्टैब्लिश, देयर हैज़ अ काउंटर क्वेश्चंस टू देम, राइट। बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी राइज होते हैं। तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ द एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ वेरी अर्ली स्टेज, कि जो डिस्कशन है वो नॉन पर्सनल डेटा पे इंडिया में हो रही है, जिसकी अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। But let's see how government is countering this, because government has already formulated a committee. कई बार कमेटी बनने के बाद चीज़ें काफ़ी डिले भी हुई हैं, तो let's see कि how they would execute it with an urgent priority basis, या फिर इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। Let's see. नाउ पुट्टास्वामी जजमेंट की अगर बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है एंड इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डेटा। तो यहाँ पे जो प्राइवेसी का इशू है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एसेंशियल फेसेट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं जहाँ प्राइवेसी को लेकर के बात की गई है, तो डिजिटल इकोनॉमी आप वैसे ग्रो कर सकते हो until unless it is not impacting any individual privacy, right? और जो socio economic growth है, that should be essentially open for the new vistas. So this is there in the Puttaswamy judgment case of the Supreme Court. Now the other editorial from the Hindu addressing the urban employment. तो यहाँ पे बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एनालिटिकल व्यू बताई गई है और इस तरह के पॉइंट आप ऐसे पेपर में भी यूज़ कर पाएंगे।
ना जिस तरह से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कंसर्न है दैट इज़ रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, बिकॉज कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कोविड से पहले 45 ईयर्स में सबसे अधिक थी। दिस वाज बिफोर बेसिकली कोविड-19, जो कि हमने 45 साल में ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं देखी थी। बट कोविड के बाद थिंग्स हैड बिकम मल्टीपल टाइम मोर वर्स्ट, राइट। तो गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, जो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, यूथ ज़्यादा है कंट्रीज़ में, तो वो वनरेबल है रिगार्डिंग द जॉब। तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो जो यूथ है वो दे वुड बी मोर वनरेबल टू द अनएम्प्लॉयमेंट, उनको सबसे ज़्यादा इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार ने जिस तरह से गरीब कल्याण रोजगार अभियान लाया है उसको लॉन्च की गई थी मार्च, बेसिकली जून में ये चीज़ें लॉन्च हुई थी, जो कि एम करी थी जितने भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है रूरल इंडिया में उसको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग थे दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द अर्बन सिटीज़ टू देयर नेटिव होम टाउन। वो अपने बड़े शहरों से छोटे गांव में आए थे, तो उनको रोज़गार की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 50,000 करोड़ ऑफ द स्कीम कैन नॉट बी सब्सिट्यूट फॉर द डिसेंट ऑफ द अर्बन जॉब। सिर्फ इतने पैसे से आप जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसको रोज़गार सारे लोगों को नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे बात की गई है एक मिसमैनेजमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है कंट्री में उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। नाउ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट में जो कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी की, दे हैज़ रेज्ड अ सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। अगर सेक्टर वाइज बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन में -50% Q1 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्शन, और ट्रेड, होटल एंड अदर सर्विसेज हैव लाइक डिक्लाइन टू -47%, मैन्युफैक्चरिंग 39% और माइनिंग जो है 29 बेसिकली 23% तक डिक्लाइन हुई थी। एग्रीकल्चर वाज द ओनली सेक्टर जहाँ पे 3.4% पॉजिटिव ग्रोथ दिखी गई है, राइट। सो दिस इज +3.4 ग्रोथ। बाकी सारे सेक्टर्स में देयर हैव बीन द नेगेटिव ग्रोथ विच हैज़ बीन विटनेस्ड। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी जॉब्स को। ऐसे लोग जो कि इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, होटल सेक्टर से जुड़े हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जो लेबर क्लासेस जुड़ी हुई है, जो लेबर वर्कफोर्स है, उनको इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो इस वजह से और ज़्यादा इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। ना राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हुई है उससे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़े हैं। रिवर्स माइग्रेशन की अगर बात करूँ तो रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है, जहाँ पे कई लोग वापस घर जाके फिर वो लाइवलीहुड के लिए अपने नेटिव होम टाउन से जहाँ पे वो गए थे, लाइक पीपल इफ रेजिडेंट ऑफ यूपी एंड वर्किंग इन द मुंबई, ही अगेन है रिटर्न बैक टू मुंबई बिकॉज ही नो कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो उत्तर प्रदेश में है वो कम है कंपेयर टू द मुंबई, राइट, महाराष्ट्र में। और जो अनाउंसमेंट हुई थी रिगार्डिंग द अब्रप्ट लॉकडाउन, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जो वनरेबल एम्प्लॉयमेंट सेक्शंस थी, खास करके साउथ ईस्ट एशिया रीजन में अगर बात करूँ तो ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में है। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखें। और जो वनरेबल एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ करेक्टराइज एज अ इनएडिक्वेट अर्निंग, जिनके पास प्रॉपर अर्निंग नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी है, काम नहीं मिल रहे हैं उनको, और जो बेसिक राइट ऑफ वर्कर है उसको भी पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो ILO की रिपोर्ट के मुताबिक, जो हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक 535 मिलियन लेबर ऐसे हैं फ्रॉम इंडिया, और इसकी जो क्वालिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब्स में दे आर वर्किंग, राइट। सो 398.6 मिलियन ऑफ द पीपल आर वर्किंग विद पुअर जॉब क्वालिटी। नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो प्रेजेंट क्राइसिस में एक मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, इसको टैकल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले फोकस होनी चाहिए कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से जनरेट किया जाए विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ लोकल बॉडीज़। दिस वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को समझें, बिकॉज जो लोकल गवर्नेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो लोग अभी वापस अपने गांव पे चले गए हैं उनको मनरेगा में इनरोल करना या कोई भी ऐसे लोकल एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन को एक्टिविटीज़ के साथ इनरोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो अर्बन एरियाज़ में नहीं है, अपने शहर में रह के भी काम करते हैं, सो दे शुड बी प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट। या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करें या तो पंचायत लेवल पे भी इसके काम, ब्लॉक लेवल पे भी की जा सकती है। Now, जो लोकल इनिशिएटिव है दैट वुड डिज़ाइन द इम्प्लीमेंटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंसेसिटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। नाउ प्राइवेट इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो दे कुड ऑल्सो फैसिलिटेट, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है, चाहे वो अपने रियल स्टेट सेक्टर्स हों या कई भी ऐसे सेक्टर जहाँ पे वर्कफोर्स की ज़रूरत है। सो दे कैन ऑल्सो बी वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशंस।
और प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मैंने आपको बताया एक अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए सबसे बड़ी जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काम करती है। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है जहाँ पे एक लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयड किया जा सके, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इन सारे चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, बोथ एट द विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हेडक्वार्टर एंड स्टेट लेवल, राइट। अर्बन रूरल एरिया में डिस्पैरिटी को ख़त्म करते हुए सारे जगह पे काम करने की ज़रूरत है। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक द एडिक्वेट मेजर्स रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़। तो और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जीएसटी का भी बात है, काफ़ी सारे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे स्टेट के प्रॉब्लम्स ये समझा सकते हो कि जो जीएसटी की इशू है, जिनको यहाँ पे जीएसटी का सेस भी नहीं मिला है, 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी पेंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी फंड अगर दे दी जाए तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर सकती है, राइट। नाउ द लास्ट टॉपिक इज वाटर लीक फ्रॉम द कंडा पोचमा रिजर्वॉयर। ये बेसिकली तेलंगाना में है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में यहाँ से कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। तो प्रीलिम्स में आप देख लें, क्योंकि ये रिजर्वॉयर के बारे में 2-3 बार न्यूज़ आ चुकी है। तो वाटर हैज़ बीन लीकिंग फ्रॉम द कोंडा पोचामा सागर रिजर्वॉयर, और ये बेसिकली मर्रूक मंडल हेडक्वार्टर में आती है तेलंगाना में। और दिस रिजर्वॉयर इज़ अ पार्ट ऑफ कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, एक काफ़ी बड़ी इरीगेशन प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम परस्पेक्टिव। आप इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लें। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इरीगेशन प्रोजेक्ट है ये। मल्टीपर्पज़ लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है जो कि तेलंगाना रिवर गोदावरी में स्टैब्लिश की गई है। अगर आपसे एग्जाम में इसके बारे में नहीं पूछी गई कोडाम्पोचो सागर के बारे में, तो कलेश्वरम के बारे में ज़रूर पूछी जा सकती है। एंड इट इज़ टाउटेड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज मल्टीपर्पस इरीगेशन प्रोजेक्ट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कालेश्वरम की, राइट। नाउ कंसर्न्स क्या हैं, कुछ जो लोकल पीपल्स हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो लीकेजेस हैं वो देखी गई हैं उस सागर बैंड्स में। उसके बाद हुआ क्या कि जो स्ट्रीम्स हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स वर कमिंग, तो लोगों ने इस जो रिजर्वॉयर है उनको बचाने की कोशिश की, बट हुआ क्या, द मकरूड एग्जिस्टेंट वाज क्वेश्चन अगेन इन थ्रू द एक्शन। चीज़ों को फिर से एग्जीक्यूट करने की बात की गई थी कि एक्चुअल में क्या इस तरह के स्ट्रीम्स फ्लो को रोका जा सकता है, बिकॉज ये तीसरी बार हुई है। दिस इज़ द थर्ड टाइम दिस इंसिडेंट हैज़ हैपेंड, राइट। सो दिस इज़ द थर्ड टाइम इन्वॉल्विंग द कोंडा पोचमा रिजर्वॉयर इन द रिसेंट पास्ट। तो आफ्टर द लोकल इंटरवेंशन इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ रोल अदा करे, ताकि जो लोकल पीपल हैं उनके कुछ, जैसे कई लोगों के फार्म्स होंगे या फिर अलग अलग जो लोग रह रहे हैं रिजर्वॉयर के आसपास, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो दिस इज़ द न्यूज़। तो आपके लिए इस न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, इसके बारे में आप पढ़ लें, और कोंडा पोचमा सागर रिजर्वॉयर, ये दो चीज़ आप इस न्यूज़ के ध्यान में रखें। बाकी कोई सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, दिस वन एंड दिस वन। नाउ कमिंग टू द आंसर्स, जो कल के सवाल थे उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बेसिकली क्वेश्चन फर्स्ट, द ऑप्शन हियर इज सी, that ITCZ is an intertropical convergence zone and with a low pressure located in the equator, and so it is the zone where the air descends. और जुलाई में देखा यह गया था कि जो ITCZ है अराउंड 20 नॉर्थ डिग्री 20 to 25 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, बेसिकली हुआ क्या था, देयर वाज समथिंग ट्राउट एंड द मोशन इज इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द थर्मल लो नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया। आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, आई जस्ट वांटेड टू रीड इट आउट फॉर यू। एंड ड्यू टू शिफ्ट इन द ITCZ, ट्रेड विंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री to 60 डिग्री ईस्ट, राइट। और जो लॉन्गिट्यूड्स है दैट ब्लो बिटवीन द सर्टन टू द नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप समझ लें। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, NCERT क्लास 11th की जो बुक है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना। क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट स्टेटमेंट है कल के, वहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है कि जो यंग बंगाल मूवमेंट है दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट थी कि यंग बंगाल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द हेनरी डुइस विवेने डिजेनेरियो एंड ही टाउट इन द हिंदू कॉलेज फ्रॉम 1826 to 1831। स्पेक्ट्रम की बुक अगर आपके पास है, NCERT क्लास 12 बिपिन चंद्रा की बुक है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आप
डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की जो सवाल है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लैंडिंग रेट, जिसको MCLR भी कहते हैं। इट इज़ अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक बिलो विच इट कैन नॉट lend, and the aim of is to improve the transition of the policy and into the lending rates of the bank. So what you can do, if you have any additional information regarding the MCLR, you can share that information in the comment section. और जो correct options हैं वो आप हमें A, B, C या फिर D कोई में इनमें से कोई एक चूज करके comment section में बता सकते हैं। Now from the polity, consider the following statement with regards to the executive power of the governor. He appoints the state election commissioner and determine his condition of services, and he can be removed by the chairman and by the member of the he can remove the chairman and member of the state public service commissions. तो ये पावर है गवर्नर को, ये आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट स्टूडेंट टेंड टू कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपके रियल एग्जामिनेशन में आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम कम होगी, राइट? So do share your answer in the comment section down below, right? And if you have any other concern regarding any queries, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.